Greetings 11th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And today we are here with the part 4th of the chapter Justice. And in today's class we are going to discuss the topic that is just distribution. In the last class we have understood the meaning of needs, recognition of special needs. And I hope that was clear to all of you. But in that also there was a contradiction. And the contradiction was that because if we are able to ensure justice, so it can create some kind of problems. Because we have understood that if we want to establish justice in society, so we will have to go with the principle of equality. But if we go with the principle of equality, then problem will be there. Then why do we use the concept of recognition of special needs? Right? So we have concluded the last video with the conclusion that now it will be the responsibility of the state or the government to ensure justice or to promote a just society. But which type of society will be called just society? Of course, in the society where there will be resources of distribution in a just manner. So that kind of society will be called just society. Right? So now we are going to discuss how can we ensure just distribution. How we will be able to say that yes, this distribution is just distribution. So let us start today's class now. To achieve social justice in society, governments might have to do more than that ensure that laws and policies treat individuals in a fair manner. अब क्या है? अगर हम सोसाइटी में जस्टिस इंश्योर करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट को कुछ और करना पड़ेगा. दैट विल बी मोर देन द लॉज एंड पॉलिसीज ऑल्सो, है ना. अगर आप एक्चुअल में फेयर मैनर में फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो सोशल जस्टिस ऑल्सो कंसर्न्स द जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और सोशल जस्टिस का एक और मीनिंग क्या है? एक और मीनिंग है कि जब हम जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जस्ट मीन्स रैशनल, लॉजिकल, जब हम गुड्स और सर्विसेज का जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो इट विल लीड टू सोशल जस्टिस ऑफ कोर्स, वेदर इट इज बिटवीन नेशंस और बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स. अब देखो, आप सिर्फ एक फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो जब आप इंडियन रिसोर्सेज को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि सभी की नीड्स फुलफिल हो जाए, तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, राइट. बट जो जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज नॉट द कंसेप्ट और दैट इज नॉट लिमिटेड टू एनी इंडिविजुअल और एनी पर्टिकुलर कंट्री, but we will have to ensure justice to each and every person, every individual. It means it is the universal concept, right? So that's why it means we will have to distribute resources in the just manner, right? Whether it is between nations. अब आप लोग देख पा रहे हो, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द रिसोर्सेज दे आर कंट्रोल बाय फ्यू ऑफ द कंट्रीज ओनली. तो क्या आप इसको जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हो? वी कांट से ना. हम लोग हमेशा बोलते हैं दैट मेजर रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द डेवलप्ड नेशन ओनली. सो वी कांट से इट जस्ट लाइक इन एवरी कंट्री वी विल हैव टू अप्लाई द सेम कंसेप्ट ऑन द नेशंस ऑल्सो, राइट. और वो रिसोर्सेज भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होने चाहिए कि हर एक पर्सन, हर एक कंट्री की इक्वल कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस कंसीडर की जाए, राइट. चाहे वो कंट्रीज के बारे में है, चाहे वो डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में है एंड इंडिविजुअल्स विद इन द सोसाइटी, या फिर वो सोसाइटी के अंदर ही डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बारे में. सो वी विल हैव टू इंश्योर, वी विल हैव टू डिवाइड रिसोर्सेज इन द जस्ट मैनर स्पेशली, राइट. If there are serious economic or social inequalities in a society, it might become necessary to try and redistribute some of the important resources of the society. लेकिन अगर आप में कहीं लग रहा है कि अगर सोसाइटी में inequalities हैं, people are not getting whatever they deserve and they are not treated in that manner in which any individual should be treated, तो क्या होना चाहिए? It becomes more necessary to redistribute the important resources. और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन. क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज्ड कर लिया था एंड पीपल, द कॉमन पीपल ऑफ द कंट्री, दे वर नॉट इवन एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स.
That's why we have understood and you all have studied French Revolution 1789 and Russian Revolution 1917. राइट तो इट मीन्स अगर रिसोर्सेज का जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो दैट टाइप ऑफ सोसाइटी विल नॉट बी एबल टू सस्टेन फॉर लॉन्ग. And the reason behind it, people always like to live in that type of society in which resources are distributed rationally. Right? So, we will have to try, and it becomes more necessary to redistribute the important resources of the society to provide something like a level playing field for citizens. और क्यों? क्योंकि अगर आप एक कंट्री के सिटीजन्स की बात करो, व्हेन यू आर कॉलिंग सिटीजन्स, तो इट मीन्स ऑल ऑफ द पर्सन शुड हैव एटलीस्ट इक्वल अपॉर्चुनिटीज. And if citizens are not getting these kind of things, so resources should be redistributed. I hope clear? That will be just distribution ना. अगर आप देख पा रहे हो in India also in present day, if you are able to see, जो सारे resources हैं उनमें से almost all of the resources पे कुछ एक % businessman का control है. तो आप इसको just distribution नहीं कह सकते. We can't say it because we will able to see कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी हमारी कंट्री में मतलब बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं हो पाती. बेसिक नीड्स तो दूर की बात है, दे आर नॉट गेटिंग मील फॉर ट्वाइस अ डे. उनको 2 बार का खाना भी नहीं मिलता है. सो हाउ कैन वी से द डिस्ट्रीब्यूशन इज जस्ट? Getting my point? Therefore, within a country, social justice would require not only that people be treated equally in terms of the laws and policies of the society, but also that they enjoy some basic equality in life condition. मतलब जब आप बोलते हो ना कि हमारी कंट्री में तो सबको इक्वालिटी मिली हुई है, वी ऑल आर हैविंग राइट टू इक्वालिटी. आप लोगों ने राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, आर्टिकल 14 to 18 वी हैव स्टडीड द सेम थिंग ओनली, दैट फॉर बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया वी आर हैविंग राइट टू इक्वालिटी. लेकिन वो जो राइट टू इक्वालिटी का मतलब है वो सिर्फ इतना ही मतलब नहीं होता कि आपने लॉ के नाम पे सबको इक्वल कर दिया, आपने पॉलिसीज के नाम पे यूनिफॉर्मेलिटी शो कर दी. राइट कि आपने एक जैसे सिमिलर लॉ सभी के लिए बना दिए. गेटिंग माई पॉइंट? बट ऑल्सो दैट दे इंजॉय सम बेसिक इक्वालिटी ऑफ लाइफ कंडीशन. बल्कि एक्चुअल में आप कब उसको जस्ट सोसाइटी कंसीडर करोगे? जब जो लोगों की बेसिक लाइफ की नीड्स हैं वो इंजॉय कर पाते हैं, बेसिक इक्वालिटी वहां पर इंजॉय कर पाते हैं, जो लाइफ को जीने के लिए असेंशियल कंडीशंस हैं वहां पे, एंड दे आर एबल टू गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज and which are just also. तो आप उसको तब कंसीडर करते हो that it is the just society. It means if you are saying that in our country we have made the law and according to the law, because we are having rule of law na, so according to law every person is equal. We have framed policy also which are equal for all. So you will not say it is just. But for making it just we will have to be more rational. We will have to provide some kind of basic equalities in life condition also and in the parameter of opportunities as well. Then we will say that yes, we are having just society. Clear? This is seen as necessary for each person to be able to pursue his or her objectives and express himself. और वो कब होगा? जब आपको ये फील हो कि हर एक पर्सन, हर एक इंडिविजुअल अपने अपने गोल्स को, अपने अपने टारगेट्स को अचीव कर पा रहा है, परसू कर पा रहा है, कंटिन्यू कर पा रहा है और खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है. राइट? गेटिंग माई पॉइंट? पहले अनटचेबिलिटी थी तो कैन यू थिंक कि वो लोग खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे? इट वॉज नेवर पॉसिबल. अगर हम लोगों ने आर्टिकल 17 के थ्रू उसको रिमूव नहीं किया होता, अबॉलिश नहीं किया होता. सो वी विल हैव टू सी कि हर एक पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस भी कर पाए. In our country, for instance, the constitution abolished the practice of untouchability to promote social equality and ensure that people belonging to lower caste have access to temples. अब और क्या है कि हमारी कंट्री में भी हमें क्या देखा है हम लोगों ने कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अबॉलिश किया है. किसको? अनटचेबिलिटी को. And the reason behind it, because we wanted to promote social equality and we wanted to ensure that people belonging to lower caste they should have also the access to reach in the temples, jobs and basic necessities like water. क्योंकि पहले अगर आप लोगों ने अंबेडकर जी के बारे में स्टडी किया होगा, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर आप लोगों ने स्टडी किया होगा तो यू मस्ट हैव स्टडीड कि उनको क्लास में अलग बैठना पड़ता था. ही वॉज नॉट एबल टू गेट एजुकेशन विद द कॉमन स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास. Why? Because of the caste factor only.
That's why we have understood the need that it is very much required to abolish the untouchability. क्योंकि अगर हमने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश नहीं किया तो पीपल विल नॉट बी एबल टू गेट whatever they deserve, and that's why we have abolished untouchability also, so that the people, they can enter in temples and they can also get placed in jobs also, and their basic necessities can also be fulfilled. I hope now it's clear. Different state governments have also taken some measures to redistribute important resources like land in more fair manner by instituting land reforms. और इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट ने भी कई बार एफर्ट्स किए हैं ताकि, जैसे हम लोगों ने लैंड रिफॉर्म्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी केशवानंद भारती केस के बारे में, राइट? तो उससे पहले लैंड रिफॉर्म्स आते हैं कुछ. सो हाउ कैन वी इंश्योर इक्वालिटी, उसके लिए गवर्नमेंट्स ने भी लैंड रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस करवाए हैं. एंड व्हाट वाज द बेसिक गोल ऑफ दैट, कि लोगों को एटलीस्ट बेसिक नीड्स की फुलफिलमेंट अवेलेबल हो जाए. It means government is doing great in that aspect, and the most important thing our constitution is doing, right? Now, differences of opinion on matters such whether and how. अब देखो कौन से ओपिनियन, अब कौन कौन से ओपिनियन है. अब देखो जैसे हम लोगों ने कंटेक्स्ट स्टडी किया, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने अभी ये स्टडी किया कि आप जस्ट सोसाइटी किसको कंसिडर करोगे. कुछ लोग बोलेंगे कि जस्ट सोसाइटी इज दैट सोसाइटी इन विच एवरी पर्सन इज ट्रीटेड इक्वली. आपने सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दी, लेकिन क्या वो एक्चुअल में जस्ट हो जाएगी? टिल देन वी आर नॉट प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, टिल देन वी आर नॉट recognizing the special needs of the people, till then we are not focusing on the lower caste people, till then we are not focusing on those people who are having needs of the governmental help. We will not be able to say, right? And just because of that we are having different conceptions, different mindset. That's why we are having conflicts also, because people will try to explain the things according to their interest, according to their benefits also, and that's why आपको क्या देखने को मिलेंगे, you will be able to see differences, right, on matters such whether and how, कि कौन कौन से, कि कैसे हो, क्यों होगा, कैसे होगा, रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड इंश्योर इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड जॉब्स, अबाउट फायर्स पैशन इन सोसाइटी. अब कुछ लोग बोलेंगे, मतलब हर एक के आपको डिफरेंट आइडियाज मिल जाएंगे. जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, एंड सपोज यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, तो आप लोगों को लगेगा रिजर्व्ड सीट शुड नॉट बी देयर, क्योंकि अगर रिजर्व्ड सीट्स नहीं है तो दैट पर्सन हु इज हैविंग मोर नॉलेज, who is, you can say, deserving more, that person will be placed there. But we are having reservation. But a child who is belonging from scheduled caste, that child knows very well कि उसका mindset कैसा, उसकी family background कैसी है, and that's why it is very much required to provide some kind of reservation in the education institutes as well. That's why, because we try to judge everything according to our social condition, according to our individual conditions as well. Getting my point? And that's why we are able to see differences in the opinion. हमें opinion में differences देखने को मिल ही जाएंगे कि हमें resources को distribute कैसे करना है, education तक सबकी access कैसे ensure करनी है, jobs में कैसे ensure करना है सारे लोगों की presence को, right? And even sometimes provoke violence. और जब ऐसी चीजें चलती हैं, क्योंकि कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, then most probably there will be violence in the society only. राइट अगर आप रिलीजन के नाम पे देखोगे, अगर रिलीजन को सोसाइटी के साथ बैलेंस करके ना चला जाए तो ऑफ कोर्स इट विल बी लीडिंग टू वायलेंस ओनली. इन द सिमिलर मैनर, अगर कास्ट को हम लोगों ने प्रॉपर मैनर से बैलेंस नहीं किया तो इट विल ऑल्सो बी लीडिंग टू वायलेंस. गेटिंग माई पॉइंट? इसीलिए रोल ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड हाउ द गवर्नमेंट इज टैकलिंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, दैट इज इटसेल्फ इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर गवर्नमेंट प्रॉपरली कहीं ना कहीं मैनेज कर पाती है, देन द सोसाइटी विल बी बैलेंस्ड. बट जैसे ही गवर्नमेंट का बैलेंस खत्म होता है, यू विल बी एबल टू सी द सोसाइटी विल बी फेसिंग लॉट ऑफ वायलेंसेस ओनली. एंड इन आवर कंट्री वी हैव सीन लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ दैट, राइट? सो पीपल बिलीव द फ्यूचर ऑफ देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज मे बी एट स्टेक. और जब वायलेंस होगी तो आपका भी फ्यूचर खराब है, and your family members also, they will be facing the same thing.
Getting my point? क्योंकि violence that is not solution of any problem, right? But if we are not getting our rights, then people are using violence as their method. We are having lot of examples. We have only to remind ourselves about the anger and even violence which has sometimes been roused by proposals to reserve seats in educational institutions or in government employment in our country. आप लोगों ने कई बार देखा होगा, इफ़ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम हरियाणा और नियर बाई स्टेट्स ऑल्सो, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हरियाणा में देयर वॉज द डिमांड फॉर जाट रिजर्वेशन. इफ यू आर एबल टू रिकॉल, lot of the things were destroyed also, lot of governmental property was also destructed, and the demand was just the reservation on the basis of caste, right? क्या कहीं से भी लॉजिकल है कि आप कास्ट के बेस पे रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हो एंड देन यू आर डिस्ट्रॉइंग गवर्नमेंटल प्रॉपर्टी? इट वॉज नॉट रेशनेबल एंड द विक्टिम वर कॉमन पीपल ओनली. गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि जो आप कभी भी वायलेंस अगर आप यूज करोगे तो इट विल नॉट बी फुलफिलिंग योर एम्स एंड टारगेट्स. हमेशा जो एंगर और वायलेंस होगा ये हमेशा से सोसाइटी को रॉन्ग ट्रैक पे लेके जाएगा. एंड द बेसिक रीजन इज ऑलवेज द गवर्नमेंट पोजीशन और एजुकेशनल सीट्स. क्योंकि लोगों को लगता है कि इफ दे आर हैविंग बर्थ इन जनरल कैटेगरी तो इट मीन्स उन लोगों को एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है प्रेजेंट डे में. बट दे आर नॉट एबल टू सी कि उन लोगों ने जो एससी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले हैं, फॉर हाउ लॉन्ग दे हैव टॉलरेटेड दीज काइंड ऑफ थिंग्स. इफ दे आर हैविंग रिजर्वेशन सो वी शुड रिस्पेक्ट इट, राइट? गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे में क्या होता है, द रीजन बिहाइंड इट ऑलवेज द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड द एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंटल एम्प्लॉयमेंट स्पेशली, राइट? As students of political theory, however, लेकिन आप क्या हो? You are the student of political science, and the basic aim to read the subject is to make you rational person. अगर आप कुछ भी बोल रहे हो, if you are speaking any of the line, there should be rationality in your wordings, right? So you will not go with your caste, you will not go with your religion, you will have to check what is rational, so that you can check if we are providing, if we are contributing for the just society or not. Getting my point? If you are doing it, it means if every person is fulfilling their duties, there is no problem, right? No one will be demanding for the justice then. Getting my point? So as the student of political theory, however, we should be able to calmly examine the issue, involve the terms of our understanding of the principles of justice. मतलब आप लोग एक्चुअल में अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि व्हाट इज जस्टिस, राइट? एंड आई एम श्योर कि आफ्टर रीडिंग दिस पर्टिकुलर बुक पॉलिटिकल थियरी यू आर एबल टू ब्रॉडर योर आइडियाज. आप अपने आइडियाज को इनहेंस कर पा रहे हो, उनको ब्रॉडर व्यू प्रोवाइड करवा पा रहे हो. व्हाई? बिकॉज यू आर रीडिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज यू आर हैविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस. यू शुड हैव द नॉलेज कि एक्चुअल में जस्टिस है क्या. जो हम रटते रटाते हैं दैट इज नॉट जस्टिस, है ना? बिकॉज इफ वी आर सेइंग जस्टिस है क्या, सो हर एक पर्सन को उसका राइट देना यही तो जस्टिस है. और वो राइट इंश्योर कैसे होगा, उसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं कि आपको स्पेशल नीड्स को भी आइडेंटिफाई करना है, आपको सोसाइटी की कंडीशन को भी चेक करना है, आपको प्रोपोर्शनेट जस्टिस भी देना है. आफ्टर दैट यू विल इंश्योर दैट यस इट इज जस्ट सोसाइटी, राइट? Getting my point? Can schemes to help the disadvantaged be justified in term of a theory of justice? तो क्या for being a student of political theory, क्या आपको लगता है कि जो schemes हैं उनको डिसएडवांटेज आप बोल सकते हो कि इनकी डिसएडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ अ थ्योरी ऑफ जस्टिस? हाँ जी, कैन यू थिंक? ऑफ कोर्स नॉट. कैन schemes to help the disadvantaged be justified in डिसएडवांटेज? अब देखो क्या है, आप उन स्कीम्स को कि डिसएडवांटेज आप मानोगे ही नहीं, बिकॉज यू विल कंसीडर कि यस इन लोगों को इन स्कीम्स की रिक्वायरमेंट है. अगर हम देखो इफ वी आर एक्सेप्टिंग कि यस फीमेल्स को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, व्हाई शुड दे गेट? बिकॉज दे वर टॉर्चर्ड. इन द सिमिलर मैनर अगर आप कम्युनिटीज की बात करोगे तो दे आर ऑल्सो टॉर्चर्ड ना. सो वी कांट से कि इट इज नॉट रैशनल, वी विल हैव टू एक्सेप्ट इट. And because we are the student of political theory, we'll have to accept it on the basis of rationality, right?
In the next section, we will discuss the theory of just distribution put forward by the well-known political philosopher John Rawls. अब इस चैप्टर का सबसे important topic that you can be asked in 6 marks also. It can be a question of 6 marks directly. अब next video में वो discuss करेंगे what is the idea of justice which was given by John Rawls. Rawls has argued that there could indeed be a rational justification for acknowledging the needs to provide help to the least privileged member of the society. मतलब उनके अकॉर्डिंग क्या है कि एक्चुअल में आपका रैशनल जस्टिफिकेशन कब होगा कि जब आप उनकी नीड्स को भी रिकॉग्नाइज करते हो, उनकी नीड्स को भी एक्नॉलेज करते हो जो सोसाइटी में लिस्ट प्रिविलेज्ड पीपल होते हैं. इट मीन्स जिन लोगों को स्कीम्स का बेनिफिट नहीं मिला, जिन लोगों की सोसाइटी में कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है, जो लोग अभी तक खुद को फुल्ली प्रिपेयर्ड और डेवलप नहीं कर पाए हैं, सो यू विल हैव टू गिव दैम ऑल्सो द प्लेस एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू से कि ये जस्टिस है, राइट? And for that, which kind of ideas John Rawls is giving, so that we will discuss in next video. I hope just distribution आपको समझ आया. Just distribution का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपने स्कीम्स बनाई, you have made the law, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को इक्वल कर दिया. No, क्योंकि जब तक उन स्कीम्स के साथ भी आप उन लोगों की नीड्स को एक्नॉलेज नहीं करते हो, आइडेंटिफाई नहीं करते हो जिनको स्पेशल नीड्स हैं, जिनकी स्पेशल नीड्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप जस्टिस इंश्योर नहीं कर सकते हो सोसाइटी में, राइट? बट ये हमेशा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है एंड इट कैन लीड टू वायलेंस ऑल्सो. सो अगेन गवर्नमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी यू कैन से दैट इट विल बी इनहेंस्ड बिकॉज गवर्नमेंट विल हैव टू इंश्योर दोज काइंड ऑफ थिंग्स टू द पीपल ताकि सभी लोगों को जस्टिस इंश्योर हो सके. In actually or in real form we can create or we can form a just society, right? I hope now the meaning of just society is completely clear to all of you. If you are having doubts and queries, feel free to ask your doubts and queries in comment section. We'll meet in next video with the most important theory of justice that was given by John Rawls. Till then you can revise the previous topics. Thank you for being connected. Thanks a lot.